آج ہم سیکشن 3.10 یکسمتی ادوار کا ترسیمی جائزہ دیکھتے ہیں۔ اگرچہ ٹرانزسٹرز کو عموماً الجبرائی طریقہ سے حل کیا جاتا ہے، لیکن ترسیمی یا گراف کے استعمال سے زیادہ گہری سمجھ پیدا ہوتی ہے، جس کے بعد ٹرانزسٹر کے ادوار تخلیق دینا زیادہ آسان ہوگا۔ آئیں فگر 3.38 کے سرکٹ کا ترسیمی جائزہ کریں۔ سوری، یہاں پہ رجسٹر نہیں ہے۔ اسمال آئی، یہ وی سی ای۔ اس فگر کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، یہاں کوئی رجسٹر نہیں ہے۔ ٹرانزسٹر کے کریکٹرسٹکس یا خواص کچھ یوں ہیں۔ یہ کسی اسپیسیفک آئی بی پر ہوگا۔ اگر ہم یہاں کی ایکویشن لکھیں تو وہ ہے آئی سی سی از اکول ٹو آئی سی آر سی پلس وی سی ای۔ اب اس ایکویشن کو سولو کر کے ہم نے آئی سی نکالنا ہے یا وی سی ای حاصل کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں دو ویریبلز ہیں، دو متغیرات ہیں، آئی سی اور وی سی ای۔ لہٰذا ہمیں ایک دوسری مساوات درکار ہوگی، یعنی سولو کرنا۔ تو وہ مساوات، وہ یہ مساوات ہے، ہمیں اس کی ترسیم معلوم ہے۔ جب بھی آپ کے پاس دو مساوات ہوں، آپ دونوں کا گراف بناتے ہیں، اور جہاں پر ان کا نقطہ تقاطع ہوتا ہے، انٹرسیکشن، یہ پوائنٹ، تو یہ اس کا حل ہوگا۔ تو اس کو ڈرا کرنے کے لیے میں کوئی بھی ایک ویلیو آئی سی کی پلگ ان کروں تو میرے پاس وی سی کی ایک پوائنٹ آ جائے گی، دوسرا آئی سی پلگ کروں تو دوسرا پوائنٹ آ جائے گا۔ دو پوائنٹ کے درمیان میں لکیر لگاؤں تو یہ ایک اسٹریٹ لائن ایکویشن ہے، یہ بن جائے گی۔ تو اس کو بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی دو پوائنٹ لیں۔ سپوز میں وی سی ای کو ہی لیتا ہوں اور آئی سی دیکھنا چاہتا ہوں، تو اگر میں وی سی ای 0 پلگ ان کروں اس میں، تو آئی سی کی ویلیو ہوگی وی سی سی اوور آر سی۔ تو ایک پوائنٹ یہ ہے میرے پاس۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ میں آئی سی کو 0 لے لوں، تو میں اگر آئی سی 0 لوں تو وی سی ای وی سی سی کے برابر آ جاتا ہے۔ تو اب یہ دو میرے پاس نقطے ہیں، ان کو میں نے ترسیم کرنا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ جس میں وی سی ای 0 ہے، اس محور پر وی سی ای 0 ہے اور آئی سی کی ویلیو ہے وی سی سی اوور آر سی۔ تو یہ ایک پوائنٹ ہے، ایک نقطہ ہے۔ دوسرا نقطہ جو ہے اس پہ آئی سی 0 ہے، تو آئی سی اس ایک محور پر آئی سی 0 ہے اور وی سی ای کی قیمت ہے وی سی سی، تو یہ پوائنٹ ہوگا وی سی سی، اور اس میں وائی 0 ہے، یہاں پہ ایکس 0 ہے اور وائی ہے۔ تو یہ دو پوائنٹ ہیں ہمارے پاس، ان کو اگر ہم سیدھی لکیر سے جوڑیں
तो ये इक्वेशन है। दैट मीन्स ये पॉइंट हमारा सलूशन है। इस पॉइंट पे जो करंट जो वोल्टेज है उसको VCEQ कहते हैं। Q पॉइंट पे VCE, और जो करंट होगा तो वो होगा ICQ। तो ये पॉइंट Q पॉइंट कहलाता है, और ये पॉइंट हमारे पास क्या निकला, VCEQ, IQ। तो ये सोल्यूशन होगा हमारा। इस लकीर को ख़त बोझ कहते हैं। ये डायोड में भी आप देख चुके हैं, ख़त बोझ को आप पहचानते हैं। इस नुक्ता को Q पॉइंट कहते हैं या नुक्ता कारकर्दगी। तो Q पॉइंट जो है ये नुक्ता कारकर्दगी है। ऑपरेटिंग पॉइंट, तो ये नुक्ता कारकर्दगी है या ऑपरेटिंग पॉइंट है। ये लाइन ख़त बोझ है, और ये लाइन ट्रांजिस्टर की IC/VCE करेक्टरिस्टिक है। तो ये लाइन ट्रांजिस्टर की IC बिलमुकाबिल VCE या VCE बिलमुकाबिल IC करेक्टरिस्टिक है। आए अब इसको थोड़ा सा इस पर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। इसी तरह बेस साइड से अगर आपने सॉल्व करना हो तो हम जानते हैं बेस साइड पे हमारे पास, अगर हम डायोड की बात करें तो VBE और बेस करंट IB। इस साइड पे अगर हम देखना चाहें तो बेस करंट होगा IB, और इस साइड से अगर आप इक्वेशन लिखे तो है VBB इज इक्वल टू IB RB प्लस VBE। ये वही VBE है जिसको हम नॉर्मली 0.7 वोल्ट लेते हैं। लेकिन अगर आपने ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है तो बेस साइड पे ट्रांजिस्टर की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो ये है। ये डायोड वाली करेक्टरिस्टिक्स है, एग्जैक्टली वही है। इस एक्सिस पे अगर IC हो तो भी शेप यही रहेगी, लेकिन ज़ाहिर है उसका स्केल डिफरेंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक दूसरी स्केल बना सकता हूँ कि IC के लिए भी शेप यही होगा। और ये जो पॉइंट है तकरीबन ये 0.7 वोल्ट होगा। अब अगर हमने IB और VBE एग्जैक्टली हमें चाहिए तो एक इक्वेशन है, एक मसावात है और दो मुतग़य्यरात हैं, तो ये सॉल्व करना मुमकिन नहीं है। लिहाजा इस इक्वेशन को जो बेस साइड से ट्रांजिस्टर का ख़त बोझ होगा या डायोड का ख़त बोझ है, ये हमें ड्रॉ करना होगा। इसमें भी हम इसी तरह का एक टेबल बनाते हैं, जदौल बनाते हैं। उसमें मैं VBE और IB लिख लेता हूँ। तो अगर VBE में 0 प्लग इन करूँ तो IB निकलता है VBB ओवर RB। तो VBE अगर 0 हो तो IB होगा VBB ओवर RB। और दूसरे पॉइंट में कोई दूसरी वैल्यू मैं लेना चाहूँ, दूसरी कीमत, तो मैं IB 0 ले लेता हूँ। तो VBE बराबर होगा VBB। तो ये अगर मैं 0 ले लूँ ये होगा VBB। इस पहले नुक्ते को अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो इसमें VBE 0 है, ये इस लाइन पे है, और IB की वैल्यू है, कोई पॉइंट होगा, ये पॉइंट है VBB ओवर RB। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है जिसमें IB 0 है, तो ये IB अगर 0 हो तो इस लाइन पे हम होंगे, तो कोई पॉइंट होगा यहाँ पे जो कि VBB और IB इस पे 0 है, तो ये दूसरा पॉइंट है। इन दोनों को हम मिलाएंगे तो ये ख़त बोझ है। ये वही Q पॉइंट है, नुक्ता कारकर्दगी, और इस पॉइंट पे जो वोल्टेज होंगे जो 0.7 के बहुत करीब होंगे, ये वो एग्जैक्ट कीमत होगी। 0.7 तो हम तखमीनन लेते हैं, तो ये जो एग्जैक्ट पॉइंट है ये है VBEQ, और यहाँ पे जो एग्जैक्टली करंट है वो होगा IBQ, और अगर IC की बात हो रही हो तो ICQ होगा। बहरहाल ये हम
आई बी क्यू के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा क्यू पॉइंट निकल आता है। तो आप बेस साइड से वी बी ई क्यू और आई बी क्यू एग्जैक्टली मालूम कर सकते हैं। कैरेक्टर साइड पे जी कैरेक्टरिस्टिक इस्तेमाल करते हुए आप वी सी ई क्यू और आई क्यू एग्जैक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। आई क्यू सॉरी आई सी इसको कहेंगे, आई सी क्यू मैं ऐसे लिखना भूल गया। अब हम देखना चाहते हैं कि अगर मैं वी बी बी की कीमत थोड़ी सी बढ़ाऊँ तो क्यू पॉइंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, आई सी क्यू और वी सी ई क्यू की नई कीमतें क्या होंगी। तो मैं इसी शक्ल को दोबारा बनाता हूँ। इस वोल्टेज की कीमत मैंने थोड़ी सी बढ़ानी है, तो इसको देखते हैं। हम उसी शक्ल को दोबारा बनाते हैं मामूली सी तब्दीली के बाद। ये छोटा v छोटा s ये सिग्नल सोर्स है कि यहाँ पे मैं एक इशारा देना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे वी बी बी अगर 6 वोल्ट हो, मिसाल के तौर पे अगर वी बी बी 6 वोल्ट हो, ये मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ, और वी एस 0.1 वोल्ट हो, तो बेस पे जो टोटल वोल्टेज हैं वो होंगे 6.1 वोल्ट। इसी तरह अगर वी एस की वैल्यू हो -0.1, अगर वी बी बी हो 6 वोल्ट और वी एस हो -0.1, तो ये जो टोटल वोल्टेज यहाँ पे होंगे ये फिर होंगे 5.9 वोल्ट। तो दैट मीन्स कि बेस के वोल्टेज मामूली ऊपर और नीचे करना के असर को हम देखना चाहते हैं। ये जो 0.1 मैंने बनाया है, इसकी जगह आप कोई इस किस्म की वोल्टेज भी दे सकते हैं कि 0.1 साइन ऑफ ओमेगा टी, कि वी एस की वैल्यू है, अगर मैं बेस से देखना चाहूँ तो आई होप ये जगह नज़र आ रही है। अगर मैं ऑसिलोस्कोप पे देखना चाहूँ तो ये 6 वोल्ट है, ये टाइम है, और यहाँ पे जो टोटल वोल्टेज है उसको अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो ये 6 वोल्ट है, और इसके ऊपर साइन वेव इस तरह की बनी होगी जिसका एम्पलीट्यूड 0.1 वोल्ट है। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये 0.1 वोल्ट है। ये सूरत हाल मैंने यहाँ पे समझाया है। तो अगर +0.1 हो तो ये टोटल वोल्टेज 6.1 होगी, और अगर -0.1 हो, माइनस का निचला कोना, तो ये वोल्टेज 5.9 वोल्ट होंगे। तो हम इसको अब देखना चाहते हैं। तो अगर अगेन मैं दोबारा बेस साइड से बनाना चाहूँ कि ये है वी बी ई, ये है आई बी, ये कैरेक्टरिस्टिक है, और मैंने देखा कि एक हमने पहले बनाया तो ये पॉइंट है हमारे पास वी बी बी कोमा 0, और ये पॉइंट हमारे पास है 0 कोमा वी बी बी और आर बी, और ये हमारा क्यू पॉइंट है। अब अगर वी बी बी के साथ वी एस भी शामिल हो जाए और ये वोल्टेज थोड़े से बढ़ जाए, दैट मीन्स ये पॉइंट फिर यहाँ पे पहुँच जाएगा, और ये लाइन यहाँ ड्रॉ होगी, और न्यू क्यू पॉइंट यहाँ पे होगा। तो अगर पहले वी बी ई क्यू ये है, तो अब वी बी ई क्यू ये होगा। इसी तरह अगर वोल्टेज कम हो, 5.9 वोल्टेज के साइड पे हो, तो अब ये पॉइंट 6 वोल्ट की बजाय 5.9 वोल्ट पे होगा, यहाँ पे होगा, और ये लाइन यहाँ ड्रॉ होगी, और अब क्यू पॉइंट यहाँ बनेगा, वी बी ई क्यू यहाँ बनेगा। इसी तरह ये पहले आई बी क्यू है, इस सिचुएशन में आई बी क्यू यहाँ पे होगा, इस सिचुएशन में आई बी क्यू यहाँ पे होगा। तो हम देख सकते हैं, अगर हम वी बी ई की बात करना चाहें
کہ اگر ویری نہ ہو رہا ہو تو وی بی ای کنٹینیوسلی یہ 6 وولٹ ہے یہاں سے لے کے یہاں تک اس ایگزامپل کے تحت، تو وی بی ای کنٹینیوسلی 6 وولٹ پہ ہے، سوری یہ 6 وولٹ ہے، یہ 6 وولٹ ہے، اور وی بی ای کیو جو ہے وہ یہ ہے. لیکن اگر وی ایس ویری ہو رہا ہو تو یہ ٹوٹل وولٹیج 5.9 اور 6.1 کے درمیان ویری ہوں گے، تو کیو پوائنٹ بھی ان 2 پوائنٹ کے درمیان ویری ہوگا. تو کیو پوائنٹ جو ہے وہ اس پوائنٹ اور اس پوائنٹ کے درمیان ویری ہو رہا ہے. تو اگر سائن ویو ہو تو یہ بیسیکلی اس طرح ویری ہو رہا ہوگا. یہاں سے اس کی قیمت ہم میجر کر رہے ہیں، تو دس پوائنٹ